सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. आज की सचमुच में सुबह में आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं। So we really welcome you from our hearts this morning, जितने भी beloved. लोग हमारे साथ हैं ऑनलाइन, हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते We हैं। thank all the people who are connected via online. विनती करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़कर सहयोग दीजिए अपने कमेंट्स के द्वारा और लिंक को भेजने के द्वारा। And we pray and we request you that please be connected with us and give your valuable comments to us. बहुत लोगों को सचमुच में तेरे वचन की जरूरत है, And many people, Lord, really need your word. इसलिए परमेश्वर दया करेगा So ओ that- प्रभु एक लोगों के ऊपर। So we believe that God is going to release His mercy upon each one of us. आइए हम निकालें पहला पत्र उसका 3 अध्याय और उसके 8 से 13 पदों तक। So we'll go into 1 Peter chapter 3 verse 18. कि निदान सब के सब एक भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नर्म बनो। Finally, all of you have unity of spirit, sympathy, love for one another, a tender heart, and a humble mind. बुराई के बदले बुराई मत करो, Do not repay evil for evil ना गाली के बदले गाली दो, or abuse for abuse, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, but on the contrary, repay with a blessing. क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। It is for this that you were called, वो बुराई का साथ छोड़े that you might inherit a blessing. और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसमें यत्न में लगा रहे। Which verse is that? पद 9 हम पढ़ेंगे, पद 9। Not rendering evil for evil or railing for railing, but on the contrary, blessing, knowing that you are there unto call, that ye should inherit a blessing. और 10 पद में क्या लिखा है? And the verse 10 says, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक रहे हैं। those who desire life and desire to see good days, let them keep their tongues from evil and their lips from speaking deceit. और पद 11 क्या कहता है? वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। Let them turn away from evil and do good. Let them seek peace and pursue it. और 3 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. और 13 पद में लिखा है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा? Now who will harm you if you are eager to do what is good? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। May the good God bless us upon the hearing and the reading of His word. इस वचन के द्वारा आज हम बड़ी खास बात पर चर्चा करेंगे। So we are going to discuss something very important on the basis of this word today. और इसमें लिखा हुआ है 9 पद में, पहला पत्र उसका 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। So the verse 9 says, do not repay evil for evil और ना गाली के बदले गाली or दो, abuse for abuse, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, but on the contrary, repay with a blessing. क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। It is for this that you were called, that you might inherit a बाइबल blessing. कहती है आशीष दो। The Bible says, bless others. आशीष देने के लिए हम लोग चुने गए हैं। We have been chosen to bless others. ये बहुत बड़ी चीज है। And this is something very big, beloved. दुनिया में सबके पास में ये उपहार नहीं है, Everyone does not possess this gift, ये हमारे पास है। but we have this gift. हमारे पास में ये पावर है आशीष देने की, But we have the power to bless others. इसलिए हम आशीष देने के लिए चुने गए हैं। That's why we have been chosen to bless others. हमारा कोई और काम नहीं है। And we have no other work apart from this. एक दूसरे से बोलो, हमारा और कोई काम नहीं So है। tell to each other, we have no other work. हमारा काम सिर्फ आशीष देना है। Our work is only to bless. अगर आप मसीह यीशु में हो, If you are in Lord Jesus अगर Christ, आपका उद्धार हुआ and है, if you have been saved, अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं, and if your sins have been forgiven आपने you, बपतिस्मा लिया and है, you have been baptized, आप यीशु की संतान हो, then you are the child of Jesus. तब आप आशीष देने के लिए चुने गए हो। That means you have been chosen to bless others. बाइबल कहती है तुमको दाम देकर खरीदा गया है। Bible says you have been bought by
paying a great price. इसलिए तुम्हें आशीष देने का काम करना That's है। why now you have the work of blessing others. इसलिए बाइबल कहती है कि तुमको आशीष देने के लिए चुना गया The है। Bible teaches us that we have been chosen to bless बाइबल others. कहती ना केवल बुलाया उसने, Not only you have been called ना केवल चुना उसने, or only being बल्कि chosen, उसने हमें नियुक्त भी किया but He has even appointed us, किस काम beloved, के लिए? for which kind of work? सिर्फ आशीष देने के लिए। To bless others. पूरी दुनिया के पास आशीषें नहीं हैं, Whole world does not possess this सबके blessing, पास में श्राप हैं। but they have curses. लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने ये काम दिया कि हम लोगों को आशीषित कर दें। God has given us this work to bless others. बाइबल कहती है कि तुम लोग पृथ्वी पर एक मन होकर के जो कुछ भी बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, Bible says when you are unified in spirit, whatever you bind would be bound in heaven. जो कुछ भी खोलोगे पृथ्वी में And वो स्वर्ग में whatever खुलेगा। you loosen would be loosened in heaven. बाइबल कहती है कि पूरी अधिकार परमेश्वर ने चर्च को दे दिया है। Bible says God has given the entire authority to the church. ओ चर्च को अधिकार दे दिया गया है Church has authority. ताकि चर्च वास्तव में लोगों के लिए ब्लेस करे। So the church can really bless people. और चर्च के लोगों का काम है कि लोगों को ब्लेस करे। And the people of the church has this work to bless others. इसलिए अगर हम आशीष देंगे तो आशीष मिलेगी, So if we give blessings, we will get अगर हम blessings. नहीं देंगे तो नहीं And मिलेगी। if we will not give, then we won't get और it. ये सचमुच में स्वार्थी जीवन होगा अगर हम आशीष नहीं दे रहे And हैं। it would be really selfish on our part if we do not bless हमारे others. पास में बहुत आशीष है, We have a lot of blessings, हमारे beloved. पास आशीषों का खजाना है। We have the treasure of कई blessings. बार विश्वासियों को पता ही नहीं है And sometimes believers don't even कि know this. आपके पास में सचमुच में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना That है। you have the most valuable treasure in this world. आपके पास में बहुत कुछ है देने के लिए, You have a lot to give others. इसलिए आज आप अपने आप को तैयार कर लो So today, prepare yourself कि आप लोगों को आशीष बांटने के लिए सचमुच में चुने गए हैं। that you will share blessing with others. और बड़ी बात तो ये होगी, And the greatest thing would be आप अगर आशीष बोगे if you would sow blessings, तब आशीष काटोगे। then you would reap blessings. आपके पास अगर आशीष की कमी है But if you have the lack of तो blessings, परमेश्वर आपको एक संदेश दे रहे हैं। then it means God is giving you a वो message. ये कह रहे हैं कि तुम इतने दिन से आशीष नहीं बो रहे हो, So God is telling you today, you have not been sowing तुम blessings. तो सिर्फ जो है चुप्पा रहते हो, You just remain quiet. आप चुप रहते हो, You remain मुंह silent. से खोलते नहीं। You do not even open your mouth. आप कभी कभी बोलोगे भैया मैं क्या दे सकता हूँ, And sometimes you may say, what can I give? जैसे कोई गाना गाता है, Like someone sings a song. क्या दे सकता हूँ, अरे क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो कहने का मतलब क्या, वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। So this person is singing that I have nothing to give. चलो ठीक है, परमेश्वर के लिए आपके पास कुछ नहीं मानते हैं, Okay, we can accept that you have nothing to give for the आपको Lord. परमेश्वर के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं। And so you need not give anything for आप the सिर्फ Lord. धन्यवाद दो, उसकी आराधना करो, So वही में बहुत only है। thank Him and worship Him, this is लेकिन enough. उसका काम भी करो, But need to do His work और उसका too. काम क्या है? And what's the work of God? उसका काम यह है कि अपना मुंह खोलो His work is to open your mouth और लोगों को आशीष दो, and bless others. बस ये काम है। This is the only work you have. परमेश्वर ने आपके अंदर मसीह यीशु को रखा है, God has put Jesus Christ inside और of you. मसीह यीशु आपके मुंह के द्वारा बात करेंगे। And so Jesus is going to speak through your mouth. जब आप बोलते हो When you speak, तो बोलने वाले आप नहीं हो, then you are not the one who's speaking, आत्मा है। but Holy Spirit is the ये one बात who's समझ speaking. रहे हैं And नहीं? this you need to understand today, बाइबल क्या beloved. कह रही है? What is the Bible तुम saying? बोलने वाले नहीं हो, You are not the one who speaks, बल्कि पवित्र आत्मा but है। it is the Holy Spirit. बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने जीवन डाल दिया है। Bible is saying that God has put life inside बाइबल of कहती है you. जिसके पास पुत्र है Bible says whosoever has a son उसके पास जीवन है, has life. जिसके पास पुत्र But है who has son, उसके पास जीवन है। he has life. इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह को अपने अंदर रखता है That's why anyone who keeps Jesus inside तो of them, उसके पास में अनंत जीवन है। that means they have eternal और life. जब आप आशीष देते And हो so when you bless तो others, दूसरे को आशीष मिलेगी। that means they would be blessed. कितना आप ऐसा काम करते हो? How much are you doing दिन this भर में much? कितनी आशीष देते How हो? many times are you blessing दिन each भर में other in a कितने day? लोगों से मिलते How हो? many times you visit दिन भर से people? कितने लोगों को आशीष How देते many हो? times you bless people in a day? क्या बोलते रहते हो? And what do you speak from your अपनी mouth? एनर्जी कहाँ खर्च कर Where रहे are हो? you spending your energy? अपने शब्दों को कहाँ लगा रहे Where हो? are you using your words? आज आपको समझना है, So today you need to understand, परमेश्वर ने beloved, जो आपके अंदर आवाज दी है, this voice that God has given you परमेश्वर ने जो आपके अंदर शब्द डाले and the हैं, words that He's put inside आप of you, उनका क्या कर रहे हो? what are you doing with those क्या आप words? उनका प्रयोग कर रहे हो?
How are you using them? किस काम के लिए कर रहे In हो? what kind of work? बाइबल हमें एक बात बताती है Bible is teaching us one thing, कि हम लोगों को करुणा में बनना है। that we need to be merciful. ये आप अच्छा कब बोलोगे? When can you speak good? आशीष कब दोगे? When can you bless others? भला कब करोगे? When can you do good? जब आप करुणा में हो। When you would be आपके merciful. अंदर करुणा होनी चाहिए। So you need to have mercy inside of you, beloved. कब करोगे ये काम? And when would you do this जब kind आप of work? नर्म होगे। When you would be humble. जब नर्म होगे When you would be तभी humble, आशीष दोगे। then you can bless others. किसी ने आपको तकलीफ दी है, Suppose somebody hurt you आपको बुरा लग रहा है and you're feeling क्योंकि bad आपको ईगो चोट लगी है। because your ego is getting hurt. और वो फिर अंदर से जो है ना वो बुरा लग रहा है। And that's why you're feeling bad अब हम उस inside. व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं बोल So पा now रहे we cannot speak good about that हम उसको person. बुरा बोल रहे We हैं। are only speaking पर bad अगर about हम that नर्म person. बनेंगे, But if we would be अगर humble, हम दीन बनेंगे if we would be gentle, तब हम फिर भी उसे आशीष दे सकते then हैं still we can bless that जैसे person यीशु मसीह का स्वभाव like था। Jesus did. बाइबल कहती है कि वो सचमुच में कितना नर्म और दीन था। Bible says Jesus was so humble and meek. उसे लोगों ने सताया, मारा, पीटा, सब कुछ किया, He was beaten and abused and persecuted. लेकिन उसने कभी भी इस प्रकार से किसी को तकलीफ नहीं But पहुंचाई। still, Jesus would never hurt anybody आप back. जैसे दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय निकाल लीजिए। Let's go to 2 Peter, 2nd chapter. पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसके 18 से 23 पद को हम पढ़ेंगे। ओ जीसस। 1 Peter chapter 2, verse 18. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, हे सेब को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल भलों और नर्मों के पर कुटिलों के भी साथ दो। कितना आसान होता है, जो भले हैं और नर्म उनके साथ तो हर कोई बड़ा अच्छा से पेश आएगा, पर कुटिलों के साथ यह है कठिन काम। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा 19 पद में? लिखा है, क्योंकि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो कलेश सहता है, ये स्वावना है। मुझे लगता है कि एक पद पे अनुवाद नहीं किया 18 पद में। 18 पद को पढ़िए फिर से। लिखा है कि हे सेब को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल भलों और नर्मों के पर कुटिलों के भी। Slaves, accept the authority of your masters with all deference, not only those who are kind and gentle, but also those who are harsh. बाइबल कहती है 19 पद में, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। For it is to your credit if being aware of God you endure pain while suffering unjustly. और फिर 20 पद में क्या कहता है? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। If you endure when you are beaten for doing wrong, where is the credit in that? But if you endure when you do right and suffer for it, you have God's approval. और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in his steps. ना तो उसने पाप किया और ना छल की कोई बात निकली। He committed no sin and no deceit was found in his mouth. और फिर कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। When he was abused, he did not return abuse, and when he suffered, he did not threaten, but he entrusted himself to the one who judges justly. इस पद को ध्यान से आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। Did you pay attention on this verse? इसमें कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। It is speaking a big thing. 21 पद में कहता है कि तुम इसीलिए भुलाए भी गए हो, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया कि उसके चिन्ह पर चलो, पद चिन्हों पे चलो। For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in his steps. वो क्या आदर्श था? What kind of example was Christ? वो कैसे चला? How did he walk? लिखा हुआ है कि 22 पद में, ना तो उसने पाप किया, Verse 22 says, he committed no sin, और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। and no deceit was found in his mouth. और फिर 23 पद में लिखा हुआ है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था।
When he was abused, he did not return abuse. और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, And when he suffered, he did not threaten back. पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में But सौंपता था। he entrusted himself to the one who judges rightly. कितना महान उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। Jesus Christ is a great example. कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। And God is telling a beautiful thing about Lord Jesus. ये चीज आज हमें और आपको करनी है So today we need to be like this, beloved. कि आज हमारे बीच में हमारे आपसी में झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं, बुरा भला बोला जा सकता है, We might have had quarrels and bickerings amidst each other. लेकिन आज आपको सीखना क्या है? But what do you need to learn today? भलाई किसमें है? Where is goodness? अच्छाई किसमें है? Where is goodness? मुझे और आपको ये समझना है कि मुझे किसी के संग बुरा नहीं करना जिसने मेरे साथ बुरा किया है। And so we need to understand one thing, beloved. We need not repay evil for evil. बाइबल कहती है अगर कोई अन्याय कर सह लेता है, किसी ने अन्याय कर रहा है और दुख उठा रहे हो, सह रहे हो, ये भला है परमेश्वर की नजरों में। Bible says if you are being done wrong and if you are still suffering, it is good in the sight of the Lord. 2 अध्याय के 19 पद में यानी कि पहला पत्र 2 अध्याय के 19 पद में, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। For it is to your credit if being aware of God you endure pain while suffering unjustly, it is pleasing in the sight of the Lord. और दूसरा अध्याय के 18 पद में लिखा है, हे सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल भलों नरमों के पर कुटिलों के भी। Slaves, accept the authority of your masters with all deference, and not only those who are kind and gentle, but also those who are harsh. अब इस पद में क्या हम सीख रहे हैं? So what are we learning from this 18 verse? से 23 पदों में क्या सीख रहे हैं? What did we learn from these हम यहाँ verses? पर ये चीज खास चीज सीख रहे हैं कि लोग हमारे संग बुरा व्यवहार करेंगे। We are learning people may behave wrongly with यहाँ us. तक कि हमारे पेरेंट्स भी हमारे संग बुरा व्यवहार कर सकते Even हैं। our parents can do the same thing. यहाँ तक कि हमारे पत्नी या पति भी बुरा व्यवहार कर सकते Even हैं। our spouses can wrong us. कई बार बच्चे भी कर सकते हैं। And even children can कभी wrong दोस्त us. कर सकते Even हैं। the friends. नौकरी जहाँ करते हो आपका बॉस कर सकता है। Even where you're working, the boss can ill treat you. और यहाँ तक कि आप मिनिस्ट्री करते हो वहां पर आपका सीनियर पास्टर भी कर सकता है। And even where you're ministering, the senior pastor also can ill treat you. आपको हो सकता है कोई बहुत ही टफ लग रहा हो और आपके लिए बहुत ही कठोर लग रहे हो, Maybe you are finding it very difficult. आपके ऊपर हावी हो रहे हो, Maybe they're trying to dominate over you. आपके लिए बहुत ज्यादा डांट रहे हो, Maybe they are scolding you a lot. आपको हो सकता है कि आपने कोई गलती भी नहीं करी है, Maybe you did no wrong even. लेकिन आपको सताया जा रहा But है, you are being persecuted. आपको दोष लगाया You जा are रहा being blamed. है, आपको परेशान किया जा रहा है, You are being like tortured. तब फिर ऐसे में क्या करोगे आप? What would you do? आपको फिर भी अधीनता में रहना होगा, Still you need to be submissive. आपको फिर भी आपको उनसे प्यार करना होगा, And still you need to love people. आपको फिर भी वो दुख उठाना है, सहना होगा। And so still you need to bear and suffer बाइबल everything, कहती है, ये beloved. परमेश्वर की नजरों में सुहावना है। Bible says God loves this. और एक और बात, मान One लो more आपने thing. गलती भी की Maybe you did something wrong और आपको उसके लिए डांटा गया, and you were being scolded for आपको that. उसके लिए चेक किया You गया, were being checked for that. तब फिर आप बुरा मानते हो And then you are offended. और लेकिन आप जो है कुछ किसी को बदला नहीं दे रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहे हो, But still you are not trying to avenge. आप क्या सोच रहे हो? What you're thinking? मैंने धीरज धरा I was patient और मैंने कितना बड़ा काम किया। and I did a big job. बाइबल कहती है कि ये बात तो सही है, Bible says yes, this is correct. गलती तुमने करी You did तो wrong. तुम्हें तो डांट खानी ही पड़ेगी So you need to be scolded. और तुम्हें बुरा मानना भी नहीं And but चाहिए। you need not be offended. अगर तुम बुरा नहीं माने तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, If you did not feel offended, it's nothing very ये अच्छी big. बात है। It is a good thing. लेकिन सबसे बड़ी बात है गलती भी नहीं की But the thing is that you did not do no और wrong. तब भी आपको डांटा गया, But still you were being तब भी scolded. आपको जो है चेक किया गया, You were being checked. तब आपको बर्दाश्त करना ये एक बड़ी बात है। But that you tolerated everything is a big thing. धीरज धर लेते हो आप, That you were patient is a big कुछ नहीं thing. बोलते हो That you आप, did not speak. बुरा नहीं बोलते हो आप, That you did not speak bad. ये आपको सीखना है। This we need to learn. और ये कहाँ से सीखा? And from where can we यीशु learn? मसीह के जीवन From से। Jesus Christ. क्या यीशु मसीह ने किया? What did Jesus do? वो एक आदर्श देके चले गए, He gave an वो example. वो चाहते कि हम भी उनके चिन्ह पर चलें। He wants us to walk in his footsteps. वो कहते हैं उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया, Bible says he did no उन्होंने sin अपने मुंह से कोई गंदी बात and नहीं nothing निकाली। wrong came out of his mouth. वो लोग गाली उन्हें देते थे, वो नहीं सुनते थे, He was abused, but he did not abuse back. उन्होंने बहुत दुख उठाया, And he suffered a lot. वो मार खाए, And he was beaten. लेकिन कभी किसी को धमकी But नहीं he दी। never threatened वो anyone करते back. क्या थे?
what did he do? हर मामले को परमेश्वर के हाथ सौंप देते He थे। would surrender everything to God. इसका मतलब ये क्या कि किसी के संग बुरा नहीं करना, That means do nobody फिर भी wrong, उनके लिए दुआ करना, but still pray for फिर them, भी उन्हें ब्लेस करना, still bless them. ये एक सचमुच में मसीह का काम है। This is the work of Christ. और मुझे और आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। And so beloved, we also need to be like this. जिस तरीके से हमने पहला पत्र 3 अध्याय और उसके 8 से हमने 13 पदों तक पढ़ा, Just like we read just now in 1 Peter chapter 3 verse 8 to 13. उसमें क्या लिखा हुआ है? What does it say? उसमें लिखा 8 पद में, निदान सबके सब एक मन हो जाएं, Be unified in spirit, कृपा में हो जाएं और भाईचारे की प्रीति रखने वाले हो जाएं। finally all of you have unity of spirit, sympathy, love for one another, and a tender heart and a और- humble mind. और करुणामय और नर्म बन जाएं। Be बाइबल tender hearted and humble. बाइबल कहती है कि हम सब लोगों का मन एक होना चाहिए, Bible is telling us to be united in spirit, भाईचारे की प्रीति रखना चाहिए, and we need to have the fellow feeling of हम brotherhood, लोगों को करुणा में होना चाहिए, and merciful, बड़ा नर्म होना चाहिए। and very humble. अगर हम सचमुच में जब तक करुणा में नहीं बनेंगे, Unless and until we are merciful जब तक हम बहुत ही नर्म नहीं बनेंगे, and very humble, तब तक हम किसी के संग अच्छा नहीं कर सकते। until then we will not be able to do any good to 9 पद में anybody. लिखा हुआ है, The verse 9 say, बुराई के बदले बुराई मत करो, do not repay evil for ना evil गाली के बदले गाली or दो, abuse for abuse, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, but on the contrary repay with a blessing. क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए It गए is for this that you were called, that you might inherit a परमेश्वर ने blessing. मुझे और आपको आशीष बांटने के लिए, बोने के लिए बुलाया है। So God has called me and you, beloved, to sow blessings. जो कोई हमारे संग बुरा करे, Even if someone is wronging us, हमें हमेशा अच्छा करना है, but still we need to repay with a blessing. हमेशा आशीष देनी है, Still we need to bless. हमेशा एक दूसरे को ब्लेस करो। And still we need to bless each other. ये बहुत जरूरी है। This is very हमें important. सीखना है कि हम कैसे लोगों को आशीष देंगे। And so we need to learn how can we bless others. बहुत तरीके हैं आशीष देने के There are लिए। many ways to bless आज others. हम सीखेंगे सारी बातें। And so we learn all the things today. इसलिए बाइबल कहती है कि सचमुच में 13 पद में क्या लिखा है? So the Bible says in verse 13, लिखा हुआ है, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा? and who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? कभी कभी आप कहते हो कि मेरी ये बुराई कर रहा है, मेरे संग उसने बुरा किया, वो दुश्मन है, वो चुगली कर रहा है, वो चुगली कर रहा है, मेरा बुरा सोच रहा है। Sometimes you say this person is gossiping about me and this person is slandering me and this person is thinking wrong about me. पर आप एक चीज जान लीजिए आज, But remember one thing, अगर beloved. आप लोगों को आशीष दोगे If you will bless others, तब आपको कोई बुरा नहीं that बोलेगा। no one is going to speak bad about इस you. 13 पद में यही लिखा हुआ है। This is what verse 13 13 says. पद में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर तुम भलाई करने में उत्तेजित रहोगे तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कोई नहीं होगा। Now who will harm you if you are eager to do what is good? अगर हम भलाई करें, If we do good, अगर हम लोगों के साथ भला करें, if we do good with अगर people, हम सचमुच में लोगों को आशीष दें, and if we really bless हम people, लोगों के लिए दुआएं करें, and we pray for people, तब वो व्यक्ति आपका सचमुच में कुछ नहीं करेगा। then really that person is not going to harm in नुकसान any नहीं way. पहुंचाएगा। In no way he's going to वो harm योजना you. बना सकता है, He may plan पर something, परमेश्वर उसकी योजना निष्फल but कर God देगा। will not allow that plan to क्योंकि prosper. आप क्या कर रहे हो? Because what are you उसके doing? लिए दुआ कर रहे You हो। are praying for that उसके लिए person. क्या कर रहे हो? What are you doing? उसके लिए आशीष दे रहे हो। You are blessing him or her. आप उसके लिए क्या कर रहे हो? What are you doing? मुस्कुराहट दे रहे हो। You are smiling at that जब वो person. देखता है आप मुस्कुराते हो, So when that person sees you, you जब smile. आप उसे देखते हो And तो- when you look at that person, तो उसको आप ग्रीटिंग्स देते हो, नमस्कार बोलते हो, जय मसीह की बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, you greet that person, और फिर उससे क्या होता है? and then what happens? उसके अंदर एक आपके प्रति एक अपनापन आ जाता है Then that person will begin to be close to कि you. उसने आपके संग बुरा व्यवहार किया, That he did wrong to लेकिन you, आपका रवैया अच्छा है, but your attitude is आप good. नाराज नहीं हुए, You are not angry. गुस्सा नहीं You हुए, are not upset. मुंह नहीं You बनाया, are not making faces. बल्कि उसकी मदद करने के But, लिए but on the contrary, you want to help this तैयार person. हो, You are ready. उसको बल्कि मुस्कुराए, And on the contrary, you are smiling. उसके लिए आपने नमस्कार किया, You greeted it, जय मसीह की him, बोली, and you greeted him. और आप वास्तव में उसके लिए
हो सकता है चाय दे रहे हो, And maybe you are even offering them a cup of हो tea. सकता है आप उसके लिए खाना भी बुला रहे हो, Maybe you're inviting them for हो food. सकता है आप उसके लिए कुछ गिफ्ट दे रहे हो, Maybe you are gifting them हो सकता something. है कि कुछ ना कुछ आप उसके लिए भला सोच रहे हो। Something good you are thinking और about तुम्हारे them. पास कुछ हो या ना हो, And whether you have anything or तुम not, प्रार्थना करोगे अगर, if you pray for this person, तो परमेश्वर सचमुच में तुमको आशीष देगा। then God is really going to bless ये you. बहुत जरूरी है। And this is very important, कभी beloved. कभी जो लोग दुश्मन हो आपके, Sometimes people who are your जो enemies, बुरा करते हैं आपके लिए, who are wronging बाइबल you, कहती है कि तुम उनसे प्यार करो, Bible says love them उनके लिए प्रार्थना करो, and pray for them उनके लिए खाना खिलाओ, and cook food for उन्हें them कोई गिफ्ट दो, and give them something good. फिर आप देखिए क्या होगा। Then you see what's going to happen. परमेश्वर सचमुच में उसके जीवन को बदल देगा। God is going to change that person's life. परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा, And God will use that person वो आपका only. दोस्त बन And जाएगा। this person will become your बाइबल friend. कहती है जब परमेश्वर के अनुसार आप चलोगे, Bible says when you walk in accordance of God's जब will, आपका जीवन परमेश्वर को भा जाएगा, and when God would be pleased with your life, तब दुश्मन आपके मित्र बना देगा। then your enemies are going to become your दुश्मनों को friends. मित्र बना देगा, Enemies are going to become your मित्र बना friends. देगा? How would he do that? क्योंकि आपने उनसे गुस्सा नहीं किया, Because you were not angry with आपने उनका them बुरा नहीं and you सोचा, did no wrong to them, आपने भला सोचा, but you thought good आपने उनके लिए दुआएं की, and you prayed for आपने them उनके लिए प्रार्थना की, and you prayed for आपने them उनके लिए कुछ गिफ्ट दे दिया, and you gifted them हो सकता है something. खाना खिला दिया। Maybe you आपके इस एक्शन को परमेश्वर देख के आशीष देंगे आपको, Maybe you offered them food and this action is pleasing in the sight of the क्योंकि Lord, so the आप- Lord is going to bless you. क्योंकि आप आशीष बो रहे हो। Because you are sowing blessings, हमेशा लोगों के लिए आशीष बो, sow blessings ये always. बहुत जरूरी है And कि हम this is लोगों के very लिए आशीष important that बोएं। we always sow blessings for people. एक बात याद रखिए, Know one thing, beloved. दूसरों की हेल्प करिए, Help others. दूसरों की सहायता कीजिए, Assist them. भले वो दुश्मन क्यों ना हो, Even if they are your enemies. आपको आशीष इसके लिए मिलेगी। Because you will get blessings back for एक this. गाना गाते, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी, क्या है आगे, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो आपके जीवन में आशीष कैसे आएगी? So how will you receive blessings in your life? जब आप आशीष बोगे। When you will sow blessings. कहाँ पे बोगे? And where you need to sow जहाँ these कठिन blessings. है, Where it is जहाँ difficult. मुश्किल है, Where it is hard. जहाँ सचमुच में कोई करना नहीं चाहता And where है, no one wants to do. आप बो के देखिए। You sow and see. आपकी लाइफ अलग ना हो जाए तो कहना, If your life would not आप change. फर्क ना दिखाओ तो And कहना, if you would not see the difference. आपके जीवन में सुख शांति ना आए तो कहना, If you would not get comfort, rest and आप peace in your जिंदगी के life. सच्चे अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। You would become a good and righteous person. आपके ऊपर परमेश्वर का साया आएगा, And God's presence is going to come upon your परमेश्वर life. का आत्मा आएगा, His Spirit is going to come upon पवित्र आत्मा you. तुम्हें मिलेगा। Holy Spirit will you जो लोग receive. तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, People who are thinking wrong about उनको you, बुरा मत कहो, don't call them उनकी बुराई wrong. मत करो, Don't speak wrong about them. आप उनसे मत चिढ़ो, And do not be angry with उनसे them. कतराओ मत, Don't be hesitant उनसे towards दूर मत them. रहो। Do not avoid them. आप देखोगे अपने जीवन में आशीषों को। And then you see your life would be blessed. आप सोचते हो जो लोग आपके लिए खतरे हैं उनसे आप बचते हो, ये खतरा है। If you try to avoid people who are dangerous for you, this is dangerous. आप उनसे कतराओ मत, Don't try to avoid them. आप उनको इग्नोर मत करो, And do not ignore them. बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, But pray for them. उनको मसीह प्यार दिखाओ। And show them Christ's love. परमेश्वर देख रहे हैं, Because God is watching. पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। The Holy Spirit will come inside बाइबल of कहती you. है हम भी कभी दुश्मन थे परमेश्वर के, Bible says once we were also the enemies of हम God. सब दुश्मन थे, All were the enemies हम of सब God. पापी थे, All were हम sinners. सब बुरा कर रहे थे, All were doing wrong. हमने परमेश्वर को दुख पहुंचाया था, And we had hurt पर God. उसने हमसे प्रेम किया, But God loved us so much. हमको पता भी नहीं था हमसे प्रेम किया। And we did not even know that He loved us so सोचो much. कितना प्यार उसने किया है। Imagine how much God loved us. इसलिए मुझे और आपको सचमुच में उन लोगों से प्यार ही करना है, So now we also need to love these kind of उनके लिए people दुआ ही and करनी pray है, for them उनकी भलाई सोचनी and है। do think good about them. आप अपने जिंदगी में आशीष बटोरोगे। And you will gather blessings in your life. हमेशा आप लोगों के लिए
आप अच्छा सोचो। Always think good about other people, नीति beloved. वचन 11 अध्याय के 25 पद में क्या लिखा है? In the book of Proverbs, chapter 11, verse 25, नीति वचन 11 अध्याय के 25 पद में क्या लिखा है? Proverbs 11, chapter 11, 25. इसमें क्या लिखा है? उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। A generous person will be enriched, and one who gives water will also get water. ये आपके अंदर उदारता, करुणामय, नर्मता, दीनता जो व्यक्ति है, जो उदार का मतलब है देने वाला, यानी कि कोई भी उसके अंदर जरा सा भी पक्षपात नहीं रहता। उसका दिल इस बात को ये सोच के नहीं देखता ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा इसको ना, वो उदार है, वो दे रहा है। जो कोई इसके पास आएगा उसे देगा वो। और बाइबल के ऐसे व्यक्ति हष्टपुष्ट रहता है। A generous person is a person who gives, and he is no respecter of person. Whosoever comes to him, he blesses and gives, and Bible says such a person will be blessed. और जो दूसरों की खेती को पानी डालता है उसके भी खेत को परमेश्वर पानी डालेगा। And if you give water, you will also get water. आप मान लीजिए अपने खेत में आप पानी डाल रहे हो Suppose you are watering your fields, और पड़ोसी के खेतों में पानी नहीं है, सूख रही है फसल, but the fields of the neighbor has dried up, और आपने डाल दिया उसके खेतों में भी but पानी। you still watered his fields. परमेश्वर कह रहे हैं तुमने अच्छा काम So किया, God is saying that this is something good you did. तुम्हारी भी खेती सींची So जाएगी। now your field would also be दिन ऐसे आएंगे irrigated. जब आपको घटी होगी, There would be days when you would have lack. तब कौन करेगा? Then who will do for परमेश्वर you? याद रखेगा God will remember कि those good तुमने acts हमेशा दूसरों की मदद that की you है। always helped others. तुम्हारे वक्त पे भी परमेश्वर काम आएगा। And so in your times of distress, God is going to इसलिए help मुझे you. और आपको अपने जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखना है So always we need to remember, beloved, कि मुझे दूसरों की मदद करनी ही है, सहायता करनी है, मुझे आशीष बोनी ही है। that we need to help others and we need to keep on sowing blessings. क्योंकि अगर ऐसा करोगे Because if you do like तो this, सचमुच में आपको आशीष मिलेगी। then you would be really blessed. इसलिए आपको आशीष देनी चाहिए। So you need to give blessings. हमेशा सुबह उठो Get up early in the तो morning. हमेशा लोगों को आशीष दो, Then bless everyone. प्रार्थना करो दूसरों के लिए। Pray for everyone. पास्टर आयदा बहुत प्रार्थना करती हैं, Pastor Ida prays a lot. हम भी प्रार्थना करते हैं, And even I pray a lot. हमारे स्टाफ भी प्रार्थना And कर even रहे our हैं, staff pray a पूरे lot. चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, And we pray for the whole कुछ लीडर्स church. प्रार्थना कर रहे हैं। Some leaders are वे praying. लोगों को सुबह उठते ही ब्लेस करते हैं। They bless the moment they get up. बहुत अच्छा समय होता है सुबह को ब्लेस करना। And morning is a very good time to bless others. आपको सचमुच में सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप परमेश्वर के सामने उनको ला करके ब्लेस कर दो, So what is the best way? Bring these people before the throne of God and bless them. और फिर आप सचमुच में लोगों को आप बात भी कर सकते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे। And then you can even tell them that God will bless कुछ you. लोग सुबह उठते हैं कभी किसी को ब्लेस नहीं करते, Some people get up but they never bless others. कुछ लोग कभी कुछ नहीं बोलते किसी से। Some people never speak to घर में भी anybody. बच्चे उठते हैं, कोई माता पिता को कोई ब्लेस नहीं करता। Even children in the house, they do not greet their parents in the morning. मैं पास आता है कि देश में जब गया तो उनके देश में हर व्यक्ति जो भी मिलते हैं मुलाकात करने पे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। So when I went to the country of Pastor Ida, I saw that everyone who meets you would say God bless you. उनके यहाँ तरीका और भी है ग्रीटिंग्स करने And there के। are many other ways to greet over there. और जैसे बाइबल बताती है वो वैसा फॉलो भी करते हैं। Like Bible says, whatever Bible says, they follow in that तो manner. अभी हम ध्यान दें कि जैसे ही किसी को देखा So let's pay attention to this. Whenever you see somebody, इसका मतलब गॉड ब्लेस यू। say God bless you. कितना बढ़िया बात है ये This is so good. कि आप जब किसी को अपने मुंह से किसी को बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि गॉड ब्लेस यू। When you are praying from your mouth that God bless you. हमेशा याद रखो, हमेशा दूसरों के लिए हमें ब्लेस करना है। Remember, we always need to bless everyone. खास करके जो पास्टर हैं, Especially the pastors. जो बड़े हैं, The ones who are वे अपने elders. छोटे लोगों को हमेशा ब्लेस करें। They must always bless the younger ones. वे हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करें। They must always bless their children. वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स लोगों को ब्लेस करें, And they must always bless the अपने students, विश्वासियों को ब्लेस the करें। believers. बहुत जरूरी है क्योंकि आप बोलोगे तो उन्हें ब्लेसिंग मिलेगी। Because if you speak, they will be blessed. इब्राहिम से परमेश्वर ने क्या कहा? What did God speak to तू Abraham? जिनको आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, Whosoever you bless, I will bless. जिनको तू आशीष नहीं देगा मैं नहीं But दूंगा whosoever आशीष। you will not bless, I will not bless. अगर तूने श्राप भी दिया तो मैं श्राप भी दे दूंगा। And if you curse, I would curse. तो बाइबल क्या कहती है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे मुंह में रखी हुई है। So Bible says death and life are in your tongue. अगर हम लोग इस वचन को जानते हैं, नीति वचन 18 का 21 पद में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 18 अध्याय
और उसके 21 And पद। it says, death and life are in the power of tongue. नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में क्या लिखा है? Death and life are in the power of the tongue. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। And those who love it will eat its fruit. इसका मतलब क्या? आपके मुंह में जीवन परमेश्वर ने डाल रखा है। That means God has given life in your mouth. परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा? What did God speak to तू Abraham? जिनको आशीष देगा Whosoever you will bless, मैं भी उन्हें दूंगा। I will also bless. तू नहीं देगा And if you will not bless, तो उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। then they will not be blessed. परमेश्वर के भक्तों को सचमुच में परमेश्वर ने ये उपहार दिया है, So that means God has given this gift to His people. और साथ साथ जिनके अंदर भी यीशु हैं, And who has Christ in him? वे अगर आशीष बोलेंगे तो आशीष आएगी। If they will speak blessings, definitely blessings are going to आपको come. लग रहा है कि दुनिया में सब पापी लोग हैं, You are thinking everyone is a sinner in the world बुरे लोग हैं, and they are bad. लेकिन जीवन किसके पास रखा है? But then who has life? आपके पास। You have life. चारों तरफ लोग कौन है? And around you, what kind of people are बुरे there? लोग हैं। Evil people are there. और जीवन किसके पास है? But who has life? आपके पास है। You have बाइबल life. कहती है आदि में वचन था, Bible says in the beginning was the word, वचन परमेश्वर था, and the word was God, और यही परमेश्वर है। and the word was with God. बाइबल कहती है कि वही वचन देधारी हो गया, And then Bible says that very word became वो flesh हमारे अंदर आ गया। and came inside of us. अब हम लोग अगर जो कुछ भी बोलेंगे And now whatever we are going to speak today, तो वो वैसा हो जाएगा। it would be so. पावर है हमारे शब्दों में। That means we have power in our words. बाइबल कहती है उसने पूरी दुनिया शब्दों से बनाई। Bible says God made world with His mouth, तो with जब His मसीह words. यीशु हमारे अंदर है So when Jesus Christ is inside of और us, वो हमसे कह रहे हैं कि बोलो and He's saying speak और आशीष बोलो, and speak तो blessings, आशीष आएगी। then blessings will चारों come. तरफ अंधकार है, Around is darkness, आप बोलते रहो अंधकार जा 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 जा, अंधकार चला and you जाएगा। keep on saying darkness go, powers of darkness go, it will go. ये बिल्कुल चला जाएगा। And really it चारों will तरफ go. शैतान है, Around us we have Satan all चारों तरफ around us. शैतान है। We have Satan all around us. बाइबल कहती है शैतान का सामना करो भाग जाएगा। But Bible says confront the devil and he will flee तो from आप you. खड़े हो जाओ, Then you stand, क्या बोलोगे? and what you will say? आप बोलोगे शैतान जा जा भाग जा भाग जा, भाग जाएगा। When you will say Satan go away, Satan has to go away. आपके शब्दों में परमेश्वर ने पावर डाली है। Because God has given power in your words. आप बिल्कुल आप आशीष बोलोगे तो आशीष निकलेगी। Really, when you speak blessings, अब blessings would come. अब आप बुरा भला बोलोगे But when you would speak evil और गंदी गंदी बातें बोलोगे, and bad words, पहली बात तो पवित्र आत्मा ही चले जाएंगे, first thing, Holy Spirit will go परमेश्वर चले away. जाएंगे, God will leave you. और आप आशीष बटोरोगे, सॉरी शराब बटोरोगे, And you will collect curses. क्योंकि आपने दूसरे को शराब दिया है। Because you have cursed others. तो अब आपको भी आप शराब मिलेगा। Now you will also get अगर आप curses. चाहते हो कि आप आशीषें काटो If you want to reap तो blessing, हमेशा आशीष बो, then sow the blessing. हमेशा आशीष बांटो, Share the blessing. ब्लेस करो ब्लेस करो ब्लेस Bless करो, everyone. हमेशा उठ करके लोगों को ब्लेस करो। The moment you get up, start blessing people. आपको याद रखना आपके 2-3 शब्दों से लोगों के जीवन में कुछ काम हो जाएगा। Remember, just by 2-3 words from your mouth can bless people. जब आप किसी से कहते हो गुड मॉर्निंग, Just if you say good morning to तो ये somebody, क्या कर रहे हो so आप? what are you doing? आप लोगों को ब्लेस कर रहे हो। You are blessing आप people. ये कह रहे हो कि आपका अच्छा दिन हो। You are telling people, may your day be good. कुछ लोगों को बहुत एलर्जी है गुड मॉर्निंग करने से, Some people are very allergic to good वो morning. गुड मॉर्निंग नहीं बोलना They चाहते, cannot even say good morning. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। Don't know what is the वो problem. सोचते हैं ये पाप है। They think this is sin. ये पाप नहीं है। But this is not sin. आप एक सचमुच में लोगों के लिए आशीष दे रहे हो। You are really blessing जब others. भी आप किसी से बोलो गुड मॉर्निंग, When you say good ऑफ morning, कोर्स पहले प्रेज द लॉर्ड बोलो। yes, first say praise the Lord. आप देखोगे बाइबल में लोग कैसे मिलते थे पहले। Try to see in the Bible how would people meet जब with each यीशु मसीह other. लोगों से मिलते थे When Jesus used to meet तो यीशु people, मसीह लोगों से कहते शालोम, Jesus used to say shalom. जिसका मतलब है सलाम। This means peace. सलाम का मतलब है तुम्हें शांति मिले। And this word means may you get आप peace. सोचो ग्रीटिंग कैसी है उनकी। So now see what kind of greetings were there. वो सारे हिब्रू लोग, इब्रानी लोग और इस्राएली लोग कैसे ग्रीटिंग करते थे, क्या बोलते थे? So how these Hebrews used to greet each वो other. कहते थे तुम्हें शांति मिले। They say may you get जैसी peace. मुलाकात हुई उनके भाई तुम्हें शांति मिले। The moment they would meet, they would say may you get जब बहन peace. से मिले बहन तुम्हें शांति मिले। When they would meet this sister, कितना- may you get peace. उनके कहने से भी कितना अच्छा लग रहा।
And it is so good to hear कि वो also हमसे हमारी शांति की कामना कर रहे हैं, that they are desiring our peace. वो हमारे अमन चैन की कामना कर रहे हैं। They are wishing for our peace, comfort and rest. इसलिए हमेशा लोगों से जब आप मिलो तो लोगों को आप अच्छी बातें बता दो। So whenever you meet people, beloved, try to tell them something good. गिनती की किताब में जब हम जाते हैं, गिनती की किताब में उसका 6 अध्याय, When we come to the book of Numbers chapter 6, परमेश्वर ने खुद कहा कि कैसे लोगों को आशीष करो। here we see God himself is telling how can we bless others. गिनती उसका 6 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ते हैं हम। When we come to the book of Numbers chapter 6 verse 23, गिनती उसका 6 अध्याय उसके 23 पद से हम पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। speak to Aaron and his sons saying, thus you shall bless the Israelites, you shall say to them. और 24 पद में लिखा कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, The Lord bless you and keep you. और यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। And may the Lord shine his face upon you यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और शांति दे। and be gracious unto you and give you peace. और 27 पद में लिखा, इस रीति से मेरे नाम को इसराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। And they shall put my name upon the children of Israel and I will bless them. अब परमेश्वर ने क्या कहा? So what is God saying here? कहा कि जब भी तुम किसी इस्राएली से मिलो तो क्या करोगे? God is saying whenever you would meet any Israelite, do like this. तुम्हें आशीर्वाद देना है। You need to bless them. क्या आशीर्वाद And बोलना है? how would you bless them? तुमको बोलना है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। And you would say, make the God be with you. यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए And may the light of his countenance shine upon और तुझ yours. पर अनुग्रह करे। And may his grace come upon you. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे May his face be towards और तुझे you. शांति दे। And may he give you peace. इतनी बातें इसराइलियों को बोलने के लिए परमेश्वर ने ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया है याजकों को कि वो इसराइलियों से बोलते रहें। So the God commanded the high priest to tell the Israelites that they need to speak these words. और यहाँ लिखा कि तुम ऐसा बोलोगे तब मैं आशीष दिया करूंगा। And God said, when 27 you पद- speak like this, I will bless you. 27 पद में लिखा, अगर ऐसा करोगे तो मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। सोचो, If you do like this, then I will bless. तो आज आशीषें किसके ऊपर निर्भर हैं? So on who are these blessings हमारे ऊपर निर्भर हैं। It is dependent upon हमारी us, जुबानों पे हैं। upon our tongue. हम जितना लोगों को आशीष 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 As much आशीष दें। as we can bless, मान लो कोई आदमी कितना भी अपसेट है, no matter how much a person is upset, वो मार परेशान है, and he is worried, आप उसे पकड़ पकड़ के आशीष दो। but catch hold of him and bless वो him. गालियां दे रहा है Even if he's और abusing, तुम कह रहे गॉड ब्लेस यू, But गॉड you are ब्लेस यू, saying, गॉड God ब्लेस bless यू। you. बोलो, सोचो, और कह रहे प्रभु तेरी रक्षा करे, तेरी रक्षा करे, तेरी अच्छा करे। हाँ? speak and think like this. कोई गाली मार रहा है If you're somebody that's कोई abusing गुस्सा you कर रहा है and is angry with और हम you, कहे, प्रभु आपके ऊपर अपनी रोशनी चमकाए, रोशनी चमकाए, but रोशनी we are चमकाए। saying, may the light of his countenance shine upon प्रभु yours. तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर May अनुग्रह his करे। grace come upon you. प्रभु तुम्हारी ओर अपना मुंह करे, मुंह करे, May मुंह his करे। face be towards वो you तुम्हें शांति दे, शांति दे। and give you वो peace. तुम्हारा भला करे, भला करे। And may he do good to you. सोचो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा उस आदमी Think का? about it. If we do like this, how would that person हमने उसे feel? पैसा नहीं दिया है, We did not give him हमने money. उसे कोई भी खाना नहीं खिलाया, We did not give him any food हमने उसे कोई कपड़ा नहीं दिया, and no clothes. लेकिन तब भी वो दीवाना हो जाएगा, But this person would be mad तब भी दीवाना हो जाएगा। would become वो mad कहे, for you. क्या बात है, and he will say, what कितनी thing, अच्छी what a प्रार्थना, great thing, कितनी अच्छी प्रार्थना इन्होंने पढ़ दी मेरे लिए, what prayers he prayed for कितनी me, बड़ी आशीष दे दी उन्होंने and he मुझे। blessed me so much. माय गॉड, ये तो बहुत कीमती प्रेयर है। My God, this is a very valuable prayer. आप सोचो थोड़ी देर के लिए Think about this. कि अगर आप लोगों को ब्लेस करते हो That ऐसे, if you bless people like this, सिर्फ शब्दों से बोल दो, only by सिर्फ words, मुंह से बोल दो। only by your mouth. कुछ लोग तो प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते, Some people don't even say praise कुछ the लोग Lord तो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते। and not even good morning. कैसे हम समझेंगे आपके दिल में क्या है? Then how would I know what's in your heart? इसका मतलब जब आप गुड मॉर्निंग नहीं बोले, लगता है आपका ही गुड मॉर्निंग नहीं है। That means when you're not saying good morning, it जब is not a आप good day खुश for नहीं हो you. तब किसी को क्या खुशी दोगे? And when you're not happy, then how can you make others मैं happy? व्हाट्सएप में बहुत लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, I say to a lot of people good हमेशा मैं morning. लिखता हूँ प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग। I keep on writing praise the Lord good morning. मुश्किल से 10% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, But only 10 people would reply मुझे back. मालूम है 90% बिल्कुल मुझे उसका उत्तर नहीं देते, And 90% don't reply to me पर at मुझे all. बड़ी खुशी होती है But I am very कि happy मैंने उनको फिर भी ब्लेस किया that है। I could bless मैंने them. आज मैंने आशीषें बोई हैं, I sowed आज the मैंने blessings गुड to मॉर्निंग you. बोया, I say you good morning इसलिए today. मेरी गुड नाइट भी अच्छी हो जाती So है। my night will also be good. इसीलिए मैं आराम से कह सकता हूँ गुड नाइट।
I can easily say कुछ लोग good गुड नाइट night. क्यों नहीं कह पाते? Why some people cannot say good क्योंकि night? उनका पूरा दिन बेकार गया, वे अपसेट रहे, वो टेंशन में रहे, उनके ऊपर आफत रही, मुसीबत रही, क्योंकि उन्होंने गुड मॉर्निंग बोया ही नहीं। तो गुड नाइट वो कैसे काटेंगे बताइए? Some people cannot say good morning and good night because their whole day did not go off well. आपको समझना है, And so you need to understand, आपके beloved. शब्दों में परमेश्वर ने जीवन दिया है। There is power in your words. अपने आप जो सुबह में अगर आप गुड मॉर्निंग सबके लिए बोगे, If you will sow good morning for everybody in the सबके लिए morning भला दिन कहोगे, and will say good day to परमेश्वर everyone, आपका भी भला दिन करेगा। God will even make your day जब good. दूसरों की खेती को सींचोगे, When you will water others' field, आपकी भी खेती सींची your जाएगी। field would also be watered. ये बात समझ लो, And so you need to अच्छी understand. तरीके से समझो। Very well, we need to इसलिए मुझे understand. इस बात की परवाह नहीं That's why I don't कि care कोई मेरा उत्तर देता नहीं है, whether देता है। anyone replies or मेरे not. पास में कम से कम 300 लोग हैं जिनके लिए मैं मैसेज लिखता हूँ, I have 300 people to who I text every day. और 300 लोग मुझे नहीं वापस पलट के जवाब But देते हैं, exactly 300 will not पर reply मेरा back to काम है me. बोना, But my work is to ताकि sow. मैं काटूं। So I can reap. मैं काट रहा हूँ, And I'm reaping. मेरा दिन अच्छा जा रहा है, And my day is going on दिन भर well. काम करता रहता Whole हूँ, day I'm working. फिर भी मेरे चेहरे पर रौनक But रहती still है, there is glow on फिर my भी मेरे face. चेहरे पर खुशी रहती Still there है, is happiness on मेरे my ऊपर face. भी हमले हैं, And even I feel मुझे get बहुत attacked. टेंशन मिलती है। I get a lot of tension. जितना ज्यादा प्रभु का काम करोगे उतना ज्यादा हमले होंगे, As much as you would do God's work, you would be उतनी attacked. ज्यादा परेशानियां होंगी। So much problems would come. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते But हैं, thanks be to God. कैसे मैं उन पे विजय पाता हूँ? How do I get victory क्योंकि मैं over them? प्रार्थना Because करता I हूँ, pray. क्योंकि मैं भला बोता हूँ, Because I sow मैं goodness. जब लोगों से मिलता हूँ When I meet तो people, मेरी कोशिश रहती है कि मैं भला करूं उनके लिए, then my attempt is to do good to them. मैं कोशिश करता हूं उनके लिए भला I करूं, try to be good to मैं them. अच्छा बोलूं, And so good. मैं अच्छा बोलूं, And so good. मैं प्यार बोलूं, And so love. मैं उनके लिए सचमुच में अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता हूं। And I really want to give good things to them. इसमें कोई बुराई नहीं है, And there is nothing wrong in आत्माओं this. को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो You आप। can do anything to आप save the spirit. आप उनके लिए सचमुच में भाई बन सकते हो, Yes, you can be a brother to उनके them. दोस्त बन सकते Be हो, a friend to them. उनके लिए आप जो है मुर्गा भी बन सकते हो। Even you can be a cock to them. अगर आप मुर्गा बन जाओ किसी के लिए क्या बुराई है? What's wrong in that? मजदूर बन जाओ क्या If बुराई you है? become a laborer for somebody, what's आप wrong in कुछ that? भी उसकी आत्मा को जीतने के लिए आप कुछ भी कर दोगे। Just to save souls, if you do something, पौलुस there's कहता है nothing wrong in मैं that. आत्माओं को बचाने के लिए सब कुछ करता हूँ। Paul says, I become everything to everybody. मान लो कोई डांसर है और वो नाच बहुत करता है, नाचता Suppose बहुत है, somebody the dancer and he loves to dance. और मैंने सोचा कि इसको कैसे जीतूं, And then I'm thinking how to win this soul. तो फिर मैं भी नाचने लगा उसके And साथ। I also started dancing. क्या बुराई है? वो कहेगा अरे ये तो नाच रहे हैं, So what's wrong in तो वो that? एकदम मुस्कुराएगा। So this person is definitely going to अब वो smile. एकदम क्या करेगा? And what he will do? इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। And he will take interest. ये बहुत जरूरी है। And this is very मान लो important. किसी देश में हम जाते हैं Suppose I visit a और हम country अपने हिसाब के कपड़े पहने हैं, and I'm wearing my own type of clothes. तो हम फर्क लगेंगे। So I will look इसलिए different. मैं उनके जैसे क्या करता हूँ, So what do I do then? उनके जैसे कपड़े पहन लेता हूँ, I dress up like मैं उन्हें them. जीतता हूँ, I try to win मैं उनका them. खाना पसंद करता And I हूँ, like their मैं उनका food. संस्कार पसंद And I करता like हूँ। their culture. तब क्या होता है, वो उनको जीतता हूँ। And this way I win them. आत्मा ऐसे नहीं जीत सकते। You cannot win souls easily, आपको beloved. थोड़ा बहुत संसारिक भी कभी कभी लोग बोलेंगे कि अरे ये तो संसारिक हो गए हैं। Sometimes people may call you worldly. यीशु मसीह को क्या लोगों ने बोला? What did people call Jesus? वो तो पापियों के साथ खाता He पीता है। sits in the company of अब sinners. सोचो यीशु मसीह उन पापियों के बीच में जा रहे होंगे, Now think about this. God is going in the midst of नशेड़ियों के sinners, बीच में जा रहे होंगे, between alcoholics, और यीशु मसीह उनके बीच में बताइए खा पी रहे होंगे, and Jesus is sitting with them and eating. और लोगों ने कहा कि यीशु मसीह पापियों के संग खा पी रहा है। And people said, see, he's eating with sinners. कितना बुरा पापी है ये। He is also a sinner. तो लोग यीशु मसीह पर भी डाउट करने लगे। Then people even started और doubting यीशु Jesus. मसीह जानते कि वो क्या कर रहे But हैं। Jesus knew what वो he was पाप करने doing. नहीं गए हैं, He did not come वो to sin, पापियों को दिल जीतने गए but हैं। he went उनके to save their souls. उनके बीच में गए, थोड़ी देर के लिए उनके संग कुछ नौटंकी उन्होंने की होगी। Yes, Jesus must have done a little bit of drama in the midst of them. हम लोग भी ड्रामा कर सकते So हैं। we can also do drama. कल आप देखेंगे हमारे बच्चे ड्रामा करेंगे, Tomorrow you will see our children doing some drama. और वे संसार के लोग इतना एक्टिंग करेंगे। And they would act like worldly people. पास्टर कई बार एक्टर हैं,
Pastors need to be good actors too. हम लोगों को एक्टिंग करनी पड़ती है, And so we need to act sometimes. पता नहीं हम क्या क्या बन जाएं, And so we can become anything. आत्माओं को जीतने के just लिए, to save आत्माओं को souls. बचाने के लिए। To save spirits. हाँ, कई बार लोग गलत फहमी के शिकार हो सकते Yes, हैं, people may misunderstand मेरे you. बारे में गलत फहमी हो सकती They है, may misunderstand शायद me. मैं किसी को जीत रहा हूँ और लोग मुझे गलत समझ सकते maybe हैं। I'm trying to win somebody's soul and people may think wrong of दुख का me. विषय तो है, It is a matter of disappointment. क्योंकि हमारे एक्शन से, हमारे कामों से, हमारे वचनों से हो सकता है हम पकड़े जाएं, Because maybe by my action and by my speech, I may be misunderstood. लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है? In spite of all this, what is the मैं aim एक of my आत्मा life? बचाने के लिए मैं सचमुच में बड़ी कोशिश करता हूँ दिलों को Just जीतने to के लिए। save one soul, I really work hard. सो मेरे जिंदगी का उद्देश्य ऐसा है, This is the aim of मैं my इसीलिए life. खुश रह सकता हूँ That's why I can be क्योंकि happy. मैं भला बोता हूँ, Because I am sowing मैं goodness. अच्छा बोता हूँ, I am sowing मैं goodness. आशीष बोता I हूँ, am sowing इसलिए मैं blessings. आशीष काट लेता That's why I हूँ, can reap इसलिए मैं blessings. मैनेज कर That's लेता why I हूँ। can manage things. चारों तरफ की मुसीबत और संकटों के बीच में भी Even in the midst of chaos and मुझे मजा आता है, disruptions, I feel मुझे good. अच्छा लगता है, I feel good. मैं आनंद कर सकता हूँ, I can rejoice. मैं चैन से सो सकता I can हूँ, sleep peacefully. अगले दिन फिर से मैं काम कर सकता हूँ, And the next day again, I'm ready to क्योंकि do works. क्योंकि मैंने अच्छा बोया, Because I मैंने sow मैंने good, गुड मॉर्निंग बोई, I see you good तो मैं morning. गुड नाइट भी बो रहा हूँ। So I'm अच्छा, also even sowing a good night. रात दिन आप रो पड़े, रोते जा रहे हो, But if the whole day you're crying कंप्लेन कर रहे हो, and complaining शिकायत कर रहे हो, and grumbling, इन सब चीजों से क्या होगा? so what you will get? ये नुकसान पहुंचाएंगे आपके is लिए, going to ruin ये your life. हानि करेंगे आपके And लिए। it's going to destroy your आपके life. जीवन का मकसद क्या? आप आशीष बटोरो। The aim of your life is to gather blessings. कैसे बटोरोगे? And how would you gather? आपको आशीष बोना पड़ेगा। But first you need to sow blessings. हमेशा लोगों के लिए मुलाकात करो तो कहो गॉड ब्लेस यू। Whenever you encounter people, say God bless you. आपको मालूम है जब आप गुड बाय करते हो, Now when you say goodbye, केवल गुड मॉर्निंग नहीं, not only good morning, गुड बाय भी करो। but say even goodbye. गुड बाय का मतलब समझते हो? Do you know what's the ये meaning of shortcut है goodbye? actually. It's a shortcut. इसका मतलब भी यही गॉड ब्लेस यू। It also means God bless you. अंग्रेजों ने इसे और शॉर्टकट कर दिया, So the English people shortened it सिर्फ बाय कर दिया उन्होंने, and they only made it to उन्होंने buy. बाय बाय। Bye इसका bye. मतलब क्या है? गॉड ब्लेस यू। This means God bless you. पर अगर आप गॉड ब्लेस यू बोल सकते हो प्लीज बोलो, But if you can say God bless you, then please say पर it. उसका मतलब उन्होंने जो बनाया कि बाय का मतलब भी गॉड ब्लेस यू है। But this goodbye also means God bless you. बाइबल कहती है कि शायद हम रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा नहीं दे सकते सबको, Maybe we cannot give basic amenities of life to लेकिन आप अपने anybody, मुंह से तो अच्छा बोल but सकते at हो। least you can speak good from your mouth. हम अपने मुंह से लोगों को नमस्कार तो कर सकते At हैं। least we can greet people from our mouth. पौलुस जो है अपनी पत्री में कितनी बार लोगों को ग्रीटिंग्स दे रहा है। How many times we see Paul greeting people in his epistles? पौलुस कितनी बार लोगों को ग्रीटिंग्स दिया है। आज How हम, many times he tried to greet लेकिन हम people? थोड़ी चीजें दिखाएंगे उसकी। But only we will see a few फिलिपियों उसका things 4:21 पद दिखाओ। when we come to the letter of Philippians chapter 4 verse 21. फिलिपियों उसका 4:21 पद में क्या लिखा है? So what does it say? फिलिपियों उसका 4:21 पद में लिखा है, हर एक जन को जो मसीह यीशु में है नमस्कार करो, और जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। Greet every saint in Christ Jesus. The friends who are with me greet you. ये देखिए ग्रीट लिखा है। See here the word greet is ग्रीट given. का मतलब क्या है? What does greet mean? ग्रीटिंग का मतलब शुभकामनाएं देना। Greeting means blessings. हाँ, लोगों को आशीष देना। Means to give blessings. जब आप प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो When you say praise तो the इसका Lord, मतलब क्या है? so what does it mean? आप परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे That हो, means you are glorifying God. परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। You are extolling Praise- God. अच्छी बात है, That's why you're saying praise the Lord. पर अब आपको लोगों को भी ग्रीट करना चाहिए। But when you now want to, but now you need to greet अब people फिर लोगों too. को बोलो गुड मॉर्निंग, And then say good Good morning, afternoon, good afternoon, good evening. good evening. आपको नमस्कार बोलना हो तो नमस्कार बोल दो। And if you want to meet, if you need to नमस्- give salutations, give हालांकि salutations. नमस्कार का मतलब क्या है? हम आपको नमन करते हैं, हम आपको झुकते हैं, ये है इसका मतलब नमस्कार का। So this word namaskar in हिंदी Hindi, में but in English it means we bend, we bow before you. हमको नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा बढ़िया ग्रीटिंग्स है, क्योंकि ये आप किसी के आगे झुक रहे, नमस्कार कर रहे So हो। this is not a good way of greeting because in this you are bowing before लेकिन somebody. ये कल्चर चल पड़ा है, प्रथा चली पड़ी, सब नमस्कार But नमस्कार because बोल रहे this is the culture of India, so it went on like this. हैं। बल्कि सचमुच में तो वही है, परमेश्वर आपको आशीष दे, But the best thing is that God bless you. और आप ये कह सकते हो कि आपका दिन भला हो, Or you can say, may you have a good day. या आज की सुबह आपकी अच्छी सुबह हो। May you have a good morning. हैं? आप इस तरीके से करना तो अच्छी चीज है, ये ग्रीटिंग्स है लोगों So के लिए, see, when you do like this, it is good. आशीष है।
This is लेकिन blessing. नमस्कार में आप ये कह रहे हैं कि मैं जो मेरे सामने खड़े मैं उनको नमस्कार करता हूं। But namaskar is like you are bowing before a human और कुछ being. लोग ये भी कहते हैं कि ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं, उनका मतलब ये है कि जो आपके अंदर रहता है मैं उसको नमस्कार कर रहा हूं। But some people say not to the person, but to the thing that is inside the person. I'm अच्छी bowing बात before है, it. आप परमेश्वर के चरणों में बैठो, घुटना टेको और झुको, ये सब कुछ करना अच्छी चीज है। Yes, all these things are good when you sit at the feet of God पर- and spend time पर in His अगर आप presence. किसी व्यक्ति से ये कह दो आपका दिन अच्छा हो जाए, आपका दिन शुभ हो जाए, या आज की सुबह आपके लिए बहुत अच्छी हो, उसको कैसे लगेगा? But only if you can say, may you have a good day, how good that person would feel. यही शब्द उसके जीवन में काम करेगा, And these words are only going to work into क्योंकि the life of this आपको आशीष person. देने के लिए बुलाया है। Because you have been called to bless. बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको चुना आशीष देने के लिए, Bible says you have been chosen to bless others. आपको आशीष देनी है। And so you have to bless others. फिलिपियों 4 अध्याय के 21 पद में बताता है कि हर एक पवित्र जन को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करो। Philippians 4:21 says, greet every saint in Christ Jesus. इंग्लिश में ग्रीट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ब्लेसिंग। In English it is written as greet, so it means give blessings. तो वो उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। So that means they are giving blessings. और 22 पद में क्या लिखा है? And then what does verse 22 say? 22 पद में लिखा है पवित्र लोग, सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने में तुमको नमस्कार कहते हैं। All the saints greet you, especially those of the emperor's household. तो आपको ये पौलुस बता रहा है ना कि लोगों को कैसे ग्रीट कर रहा So है वो। Paul is telling you how we need to greet people. वो यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड नहीं कह रहा है, He is not saying praise the Lord over प्रेज द here. लॉर्ड यहाँ हालेलुया नहीं बोल रहे हैं And सिर्फ, he's not only saying praise the Lord, जय मसीह की hallelujah, सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ग्रीटिंग्स भी दे रहे but हैं। he's even giving blessings. क्यों? क्योंकि ये ग्रीटिंग्स देने से उनके जीवन में आशीष आएंगी। Because if you greet somebody means you are sending blessings into the life पहला of this कुरिन्थियों उसका person. 16 अध्याय के 20 पद, So when we come to the letter of 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय के 20 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय के 20 पद, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सब भाइयों को नमस्कार करो और पवित्र चुम्बन में आपस में नमस्कार करो। all the brothers and sisters send greetings, greet one another with a holy kiss. ये आप देखिए कितनी बड़ी महान आशीष है। Now see, this is such a great blessing. यहाँ प्यार से हमको एक दूसरे को आशीष देने के लिए कहा गया। This means out of love we need to bless each other. और यहाँ पर वास्तव में जब हम देखते हैं कुछ देशों में, वहां पर लोग वास्तव में एक दूसरे के संग गले लग के उन्हें आशीष देते हैं। And in some countries people would even embrace each other and give और blessings. कुछ लोग जो हैं जब गले मिलते हैं तो कान के पास में लगभग यहाँ चुम्मियां लेकर के लोगों को ग्रीटिंग्स देते हैं। And some people while hugging they would even kiss near the temple. तो आप ये समझ लो कि इससे और भी लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तव में परमेश्वर ही उनको बिल्कुल प्यार कर रहे हैं और उन्हें आशीष दे रहे हैं। And then you would make them feel like God is really loving them and blessing them. हमारे देश में तो ये नहीं हो सकता But है। in our country this is not possible. हमारे देश में सिर्फ हाथ मिला लेते हैं Only we can shake hands या हाथ जोड़ लेते हैं, or we can, लेकिन उद्देश्य hands क्या? together. आप भले चाहे किस करो ना करो, but whether you do this kiss or not, क्योंकि यहाँ पर किस का बहुत ही गलत मतलब निकल because जाता है। here people have wrong conceptions about kiss. आप मत किस करो, So no need to do this thing. लेकिन आप अपने मुंह से लोगों के लिए आशीष तो बोल सकते But हो। at least you can speak blessings from your mouth. लोगों को आप आशीष कहो। Say blessings to each other. दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 2 Corinthians chapter 13 और उसका 12 पद, verse 12. दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के 12 पद। For now we see in a mirror dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part, then I will know fully, even as I have been fully known. दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। So greet one another with a holy kiss. तो आप फिर से देख रहे हैं कि वहां पर कैसे परमेश्वर के भक्तगण लोग पवित्रता के साथ एक दूसरे को आशीष देते थे चुम्बन दे दे करके। So now here also we can see how the holy people of God would greet each other with a holy kiss. और फिर पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय के 26 पद में क्या लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय के 26 पद में क्या लिखा हुआ है? 1 Thessalonians chapter 5 verse सब 26. भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। Greet all the brothers and sisters with a holy kiss. आप देखो, हमेशा याद रखो, यही सब चीजें हमें समझनी है कि हम कैसे प्यार लोगों से करते हैं। हमें अपने भाइयों बहनों से हमें पवित्र प्यार करना है। So we need to understand, beloved, we need to love each other in a holy way. हमारे जीवन में पवित्र प्यार होना चाहिए।
We must have this holy हमें love in लोगों our के लिए life. अच्छी शुभकामना करना चाहिए। And so we must always think good about others. किसी को अगर हम लोग गले लग जाते हैं या किसी को हम किस कर देते हैं, उसे अच्छा लगता है। If we just hug somebody and kiss that person may feel good. लेकिन आप जानते हो कि आप सबके साथ नहीं कर सकते, But you know, you cannot do this to बड़ा everyone. मुश्किल है। And this is very difficult too. लेकिन फिर भी आपको किसी से वास्तव में आपको मसीह का प्यार करना तो है ही। But somehow, sometimes you need to show Christ's love. उद्देश्य क्या है कि लोगों को आशीष दो। What is the motive? To bless people. वास्तव में दुनिया में बहुत लोग हैं, दिल टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में बहुत अकेलापन है, उदास है, उन्हें प्यार की जरूरत है। And there are many people in the world, beloved, who are heartbroken and they really need a lot of love in their life. लेकिन हम और कई तरीके से लोगों का एहसास करा सकते हैं कि हम और हमारी कलीसिया, हमारा परिवार आपसे प्यार करता है। But there are many ways we can make them feel that we love them. ये जरूरी नहीं कि हम गले लग कर चुम्मियां ही लें, Not necessarily always we need to hug and kiss. क्योंकि ये चीज हमारे देश में लोग गलत महसूस करेंगे। Because in our country, people are not this much लेकिन फिर broad-minded. भी हम उन्हें आशीष बोल सकते But still हैं। we can bless them. बहुत जरूरी है। And this is very अगर important. हमारा वो दिल साफ है, If our heart is हमारा clean मन साफ है, and our mind is clean, उस उद्देश्य के साथ हम लोगों के लिए प्यार की आशीष भेजेंगे तो परमेश्वर हमें भी आशीष and देगा। then we would bless others and God is going to return us back. हमेशा याद रखो, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, जब तुम किसी गांव में जाओ, घर में जाओ, तो तुम उन्हें आशीष देना। Remember, Jesus said, whenever you visit any town or village, bless them. और जब वो सचमुच में तुम्हारे को स्वीकार करेंगे तो वो तुम्हें आशीष मिलेगी। And if they would receive you, they would be blessed. तो यीशु मसीह भी जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जी उठे और चेले लोग जब मिलने आए, तब यीशु मसीह को मिलते ही यीशु मसीह ने कहा सलाम। The Bible says when Jesus rose and when the disciples came to meet him, then Jesus said shalom. और फिर बाइबल कहती है कि उसके लूका 24 अध्याय के 36 पद में कि जब यीशु मसीह उनके बीच में आए तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। And when Jesus came in the midst of them, even Jesus said, may you get peace. आज मेरे इस संदेश में आपको क्या सिखाने का उद्देश्य है? So what was my purpose in today's message? मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग आशीष बोने के लिए बुलाए गए हैं, आशीष बांटने के लिए बुलाए गए हैं। I am trying to tell that we have been called to sow blessings. आज आपके पास धन दौलत पैसा आपके पास नहीं होगा, Maybe you do not have wealth and house कोई and riches बात नहीं, today. पर अपने मुंह से लोगों के लिए भला बोलो, But at least from your mouth speak अपने good. मुंह से लोगों के लिए भलाई करो, Do good आप प्रार्थना करो, and pray for आप them आशीष दो, and send them जब भी blessings. बोलो लोगों को उत्साहित की बात करो। So whenever you meet them, try to motivate आदमी them. कितना भी बुरा हो उसे अच्छा बोलो, Even if a person is bad, call them कितना good. भी टेढ़ा हो उसे सीधा बोलो। Even if he's crooked, call him straight. आप देखोगे कि वो कैसे बदल जाएगा। And then you will see how this person would वो change. इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि सचमुच में आपके सामने उसे बदलना है, He will not change because he has to change before you. बल्कि परमेश्वर उसे बदलेंगे, But God will change क्योंकि him. आपने जो बोल दिया उसके जीवन वैसे ही होगा। Because now what you have spoken, God is going to make it happen in his परमेश्वर life. उसको बदल देंगे। God will change this person. जब लोग बच्चों को शैतान शैतान बोलते रहते हैं, When people keep on calling their children like a demon or devil, जब बच्चा बड़ा छोटा ही होता है, and when a child is still very small, उसे पता भी नहीं शैतान कौन है, he does not even know who is Satan. कभी शैतान देखा भी नहीं उसने। He's never even seen पर Satan. बच्चे लोग, पर माता पिता और पड़ोसी लोग उसको कहते हैं बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है। But parents are never saying this is like a demon. लोग घर में जैसे ही घुसता है लोग कहते हैं अरे भाई हमारा लड़का बड़ा शैतान है। The moment somebody visits them, they say, "Oh, my child is really like a वे devil." अपने मुंह से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये शैतान So बन जाए, now they are prophesying from their own mouth that he becomes like और a बाद devil. में ऐसा शैतान बनता है कि उनके छक्के छुड़ाता है। Later on, he really turns out to be a तो devil. किसने बोया? So who sows? आपने अपने आप बोया So शैतान। you are sowing from your own mouth. शैतान बोल बोल के शैतान बना डाला। Speak, calling him Satan so many times, you made him into a devil. अगर आप उसको बोलते, अच्छे नाम देते उसको, If only you would have given good names आप to उससे him, बोलते ये बहुत ईमानदार है, you would have said he's very faithful, बहुत सच्चा है, very honest, झूठ नहीं बोलता, never speaks lies, ये कैसे लड़ता नहीं है, and never fights. तो होशियार रहेगा। Then he would be वो alert. सोचेगा मैं लड़ता नहीं हूँ, And he would know, yes, I तो never वो लड़ेगा fight. नहीं। So he will never fight. उससे बोलते गुस्सा नहीं करता He है, never gets angry. तो कहेगा यार गुस्सा नहीं करेंगे। Then the child will think, okay, I will not be आप angry. उसके सामने भविष्यवाणी कर रहे हो, Because you are prophesying things अच्छा over your बोल रहे हो। children, you are speaking good, तो क्या होगा? then what will happen? आप पास्टर डैनियल के पास में आते रहो Keep on coming to Pastor और कहेंगे Daniel आप पास्टर डैनियल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। and keep on saying, Pastor Daniel is very good, very good. तो मेरी मजबूरी भी होगी, मैं अच्छा बन के रहूंगा ना, Then sometimes I have to be good. क्योंकि मेरे लिए भविष्यवाणी भी हो रही है। Because also I have
prophecies are being done for अगले me. आदमी की सोच भी अच्छी है, And this person in front is also thinking ये मुझे good. बहुत इज्जत देते हैं, And they're honoring me. तो वो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा पेश, So now we would also become like चाहे वो that. दुनिया में कितना भी बेकार No क्यों ना matter हो। how worse we are. लेकिन जब हम उसके लिए भविष्यवाणी करते But हैं, when we prophesy over somebody, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we pray over जब हम somebody, बोलते हैं, and when we speak, तो वो अच्छा हो जाएगा। then it becomes good. बाइबल कहती है तुम जो कुछ भी मांगोगे Bible says whatever you वो ask हो for, जाएगा it will तुम्हारे be लिए। done for you. इसलिए बाइबल कहती है आशीष दो। That's why Bible says give जब भी लोगों से blessings. मुलाकात करो, When you meet people, मुस्कुराओ, smile, खुश हो जाओ be happy, और कहो आपका दिन खुश हो, and say may you have a आपका good दिन day. शुभ हो, May you have a good आपका day. भला हो, May you आप be जहाँ good. जाओ परमेश्वर आपके साथ May the हो। God be with you wherever you God go. bless you. God bless you. अगर आपने ऐसे बोल दिया And if you only speak like this, कितना अच्छा लगता है। it would be so good. सोचो थोड़ी देर के लिए, Think about this. कुछ विश्वासी लोग जब मेरे रात में मैसेज देखते हैं या मैं उनके लिए प्रार्थना रात की कर देता हूं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। When some believers see my messages in the night and when I pray for them, they really feel so और good. कभी कभी मैं बहुत व्यस्त होता हूं, नहीं कर पाता, But sometimes I'm very busy, I'm not able to तो do. उन्हें अटपटा से लगता है। Then they feel something उन्हें कुछ strange. खालीपन से लगता They है। feel a तब वो vacuum. हमें लिखते हैं पाशा आज And then they प्रार्थना है। write, Pastor, today you did not pray. अचानक से बोलते हैं पाशा आज प्रार्थना नहीं भेजी। Pastor, today you did not send any अच्छा, हम prayers. इतने बिजी होते हैं हम ये भी नहीं समझ पाते कहाँ पे प्रार्थना भेजी, कहाँ की प्रार्थना भेजी, And हम भूल जाते sometimes हैं। I'm so busy, I don't even remember where I need to हम send. सोचते रहते हैं कौन सी प्रार्थना कहाँ पर भेजना And है। so I think which kind of prayer and where do I बाद need में to याद send? आता कि अच्छा जो नाइट प्रार्थना हम भेजते हैं वो And then कह I रहे हैं। remember, okay, they're talking about the night prayers. तो फिर कितने आदी हो गए हैं, So think about this, they're so used to उन्हें it. कितना अच्छा लगता And होगा। they feel so good. रात के समय टेंशन हो रही है, Maybe at night they are stressed वो पाशा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते and they हैं, don't want to disturb वो me. पाशा को कॉल नहीं कर They सकते don't हैं, want to call लेकिन me. पाशा उनकी प्रॉब्लम समझते हुए अपने आप दुआ कर दे रहे But हैं। pastor is understanding their problems and praying for उन्हें कितना them. अच्छा लग रहा है। So they are feeling so good. जब हम पास्टर लोग दुआ कर देते हैं, When we pastors कई pray, बार लोग हमसे बोले हैं कि पास्टर आयडा हर दिन सुबह प्रार्थना करती हैं, some people tell me, Pastor Ida prays every वो morning प्रार्थना भेजती हैं, and she sends prayers. तो हमें बड़ी खुशी होती है, And so I feel very good. उन्हें भी बड़ी खुशी होती And है, she also feels very उन्हें good. उनका दिन अच्छा हो जाता And है। their day is so good. तो मैंने कहा ठीक है तुम दुआ करो कि उनका दिन अच्छा हो जाए, मैं दुआ करूं पूरी रात अच्छी हो जाए। Then we decided like this, she will pray in the morning and I'll pray in the night. प्रेज द लॉर्ड, हम लोग मिलकर के आपके लिए सचमुच में दुआ कर रहे हैं So together we are praying for you. ताकि आप अपने जीवन में सचमुच में सदा आशीष पाओ। So that in your life you will always be एक blessed. बात याद रखना, हम Remember, beloved, आशीष बोने के लिए बुलाए गए We हैं। have been called to sow blessings. आप भी बुलाए गए हो, And even you are called इसलिए to sow आपका काम blessings. सिर्फ आशीष बोना है। So your only work is to sow मुंह blessings. से भविष्यवाणी करते रहो, Keep on prophesying from अच्छा your हो mouth. जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा That may हो it be जाए। good, may it be good हो for you. with जाएगा। you. And it will be done. कलीसिया के पास पावर है, Church has a कलीसिया power. दुआ करेगी कोरोना भाग जा भाग जा भाग जाएगा। Church will pray and Corona will leave. कोरोना कभी का भाग गया होता, And Corona would have left long time back. लेकिन कुछ लोग भागने नहीं दे But रहे, some people don't want it to go. उसके भी कई कारण And बताएंगे there are बाद many में। reasons I will tell you लेकिन later. हकीकत तो ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा But the है reality is God is listening to our और prayers. वो हमारी हर समस्या का समाधान कर And देगा। He is going to provide every इसलिए solution. आज आप किसी के संग बड़ा काम ना कर पाओ, So even if you're not able to do something कम से great, कम ब्लेस तो कर दो, at least bless. आशीष तो कर दो, At least bless from your भला तो mouth. सोचो, Think good. भला तो करो, Do good. आपको आशीष मिलेगी। And you will be blessed. कितने लोग ऐसा करना चाहेंगे? And so how many people want to कितने do लोग like ऐसा this? करना चाहेंगे? How many want अपने to do like जिंदगी को this? परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। Then surrender your आज life to फैसला God. कर लो And decide कि today मैं सचमुच में नर्म दीन हो जाऊंगा, that I would be really कोई gentle मेरे and संग humble. कितना बुरा भी Even करे if someone misbehaves with me, तब भी मैं अच्छा then करूंगा, also I'll be अच्छा good. बोऊंगा, I will sow good. दुआएं And करूंगा I will pray. और मैं आशीष बटोरूंगा। And कितने I लोग will चाहते, gather कितने लोग चाहते, blessings. कितने And लोग how many चाहते हैं? people want? आइए अपनी आंखें बंद करें, Let's close our eyes and pray. अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes. ओ प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। And we will pray in the name of Jesus इस Christ वक्त हर एक जन के लिए, for each and every person right जितने now. भी लोग यहाँ पर उपस्थित People हैं, who are present here right now. हम उन सबको तेरे हवाले करते And we हैं। commit every person into your विनती hands, करते हैं Lord, कि and तूने we छू request you, Lord, touch them उनके जीवन को बदल and change their lives. और उनके अंदर सचमुच में ऐसा जीवन बना दे कि वो लोगों को श्राप नहीं आशीष दें। And may their lives be so good that they bless others and not चाहे curse वो them. कितना भी किसी के संग बुरा व्यवहार करें, No matter whatever anybody has done to them. परमेश्वर सचमुच में चाहता है कि हम उनको तब भी आशीष But करें। God really wants that we still bless them. याद रखें
Remember, अय्यूब के जीवन में बड़ी परेशानियां थीं, Job had a lot of problems in his life. लेकिन बाइबल कहती है But Bible says, जब अय्यूब ने प्रार्थना करी when दूसरों के Job लिए, prayed for his own friends, तब परमेश्वर ने उसे भी आशीष then दी। God even blessed Job. याद रखो, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, Remember, beloved, when we pray for जब हम others दूसरों के लिए सोचते and हैं, when we think about them, चाहे कुत्ता भी कोई बुरा कर दे हमारे संग, no matter how much they have wronged हम us, सह लें let us bear और हम उनसे प्यार करें, and still love उनकी them मदद करें, and help them बुराई ना करें, and still not भलाई forget about करें, them but do good to मेल them मिलाप को ढूंढें। and think about reconciliation, परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे because हैं, God is looking at these kind of people. अगर हम भला करेंगे And if we do good, तो beloved, हमारी बुराई कौन then करेगा? who can be against कौन us? हमारा बुरा करेगा? Who can harm कोई us? बुराई नहीं No करेगा, one can harm सब us. लोग भला Then करेंगे। everyone will do good to us. आओ हम यीशु के उदाहरण को सीखें, Let's learn from the life यीशु of के Jesus नाम में Christ in the name of Jesus सबको Christ. बात कर प्रभु Father, speak to each one of सबके us. जीवन को बदल दे, Change our lives, यीशु Lord. के नाम से मांगते In the हैं, name of Jesus Christ, we आमीन, ask. Amen. आमीन। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यस, यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजो, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।